آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیلیبریشن ویک اسپیشل اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشی تو آف کورس مجھے ہے کیونکہ میرے کپڑوں سے اور میرے پہناوے سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ ٹو آل آر سیلیبریشن پارٹنرز اور یقیناً آپ ان کے کریڈٹس دیکھتے جا رہے ہیں. اور آج میں زیادہ خوش ہوں بیکاز سوشی کھانے والی یہ سوشیل لڑکی کیوں نہ خوش ہو جب شیف جون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سکورا کی زبردست ریسیپیز اینڈ رولز ہمارے پاس ہوں گے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک این اپڈیٹ آف دیٹ سون. آئی سی شیف جون ٹو بی ویری ویری بزی. ذرا ہمارا کیمرہ پین کر کے دکھائے تو شیف جون کان میں اس وقت مصروف ہیں, مجھے بھی زیادہ ٹینشن نہیں دے رہے. اور جن لوگوں کا عام طور پہ خیال ہوتا ہے نا کہ جی سوشی کا مطلب ہے کچا کھانا, تو وہ بھی الگ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو پکی پکائی سوشی بھی مل جائے گی. جی سوری مجھے نہیں پتا چل رہا تھا, صبح صبح سوشی کی وجہ سے میں بہت ڈسٹریکٹڈ ہوں. لیکن سوشی کا یا کرسپی رولز کا, کیلیفورنیا رولز کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کچا کھانا کھانا پڑے گا. آج آپ کو پوری پکی ہوئی سوشی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اچھا جی, جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان سے, بلکہ اس آر میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں, فرمائش کرتے رہتے ہیں, ان کی بات آپ کے دل کو جا کر لگتی ہے. اور جیسا کہ آج کے شو میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں another cornerstone of our content which is mental health and personal development. آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ نے کالج یا یونیورسٹی کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے, پوری زندگی ایک سیکھنے سکھانے کا ایک مرحلہ ہے اور زندگی کے تجربے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. ہمارے ان ایکسپرٹس نے یقیناً پچھلے 3 سالوں میں بہت اہم موضوعات کو اجاگر کیا ہے, خاص طور پہ آپ کی ذہنی صحت, آپ کے جذباتی رویے, کن چیزوں میں آپ کا ایگو ایکٹ اپ کرتا ہے, آپ کا شیڈو سائڈ, آپ کے انر چائلڈ وونڈز, all of that has been brought to light. تو آج ذرا ان کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ 3 سالوں کا سفر ان کے لیے کیسا رہا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے پاس موجود ہے فرحاد کرم علی, who is a leadership development practitioner. ان کو میں پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ it would not be wrong to say that I have learned a lot from him over many years. Thank you so much فرحاد for making time for us. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سلما ظفر, a lady who wears many hats. کبھی آپ ان کو دیکھتے ہیں as an expert, کبھی ہمارے کچن کی رونق بڑھاتی ہیں, اور of course you are also seeing her in dramas and plays and as a host. Thank you so much Salma ji for making time for us. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں our very favorite ڈاکٹر صوبیہ آفتاب, اور ان کا اور میرا فیوریٹ ایشو جو نا پرسنالٹی ٹائپس رہتا ہے. ہم نے نارسسسٹ کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے صرف انہی کو ٹاکسک برانڈ نہیں کیا, اپنے بھی جو کو ڈیپینڈنسی کے مسائل تھے وہ ہم نے کئی سالوں سے اٹھاتے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صوبیہ for being here with us. And of course my dear friend who always connects with us from لاہور, اور جب کراچی آتی ہیں تو ہم ان کو اسٹوڈیو میں لائے بغیر نہیں جانے دیتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی فیوریٹ, ون آف دا فورموسٹ نیوٹریشنسٹ ان پاکستان اینڈ آلسو موٹیویشنل اسپیکر, سحر چاولہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سحر فار میکنگ ٹائم فار اس. فرحاد ویلکم ٹو دا شو, اور شکر ہے آپ نے ہماری اینیورسری کے لیے وقت نکالا, ورنہ تو آپ اتنے بزی چل رہے ہیں کہ مشکل ہو گیا آپ سے ملنا. تھینک یو ویری مچ, کنگریچولیشنز ٹو یو. اور جب مجھے پتا چلا یہ 3 سال کی سیلیبریشن ہے, کل رات کو میرا میسج آیا ایسے, میں نے کچھ نہ کچھ کر کے بھی آنا ہے. سو کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ دی انٹائر ٹیم. تھینک یو سو مچ. فرحاد مجھے بتائیں کہ سنس دا لاسٹ ٹائم وی کنیکٹڈ ہم نے بات کی, اور خاص طور پہ ہمارے تو کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی اولے پڑے, آ گیا کووڈ کی وجہ سے ہماری پروگرامنگ میں بڑی تبدیلی آئی, ایشوز اور سبجیکٹس جو دنیا ڈسکس کر رہی تھی اس میں بڑی تبدیلی آئی. کیسا پایا اگر اف آئی لنک کووڈ with personal development, issues of mental health, what has been our greatest learning in the last 2 years? I think the greatest learning that people have realized now is کہ پچھلے 20-30 سالوں سے جو بولتے آ رہے ہیں نا کہ اسٹریس کیسے مینج کرتے ہیں, how to have good well-being, how to adapt to change, how to understand people, how to communicate, کس طرح واقعی میں لوگوں سے صحیح نیت کے ساتھ پوچھو. آپ دیکھیں جب سے کووڈ آیا ہے, جب بھی لوگ کسی سے یہ کہتے ہیں نا I hope you are doing well, there is sincerity in this, I hope you are doing well. واقعی میں احساس آیا. تو ٹیکنیکلی جو اتنے سالوں سے بولتے آئے نا, اب کووڈ نے زبردستی کروایا ہے. اور جیسے سحر میرے خیال میں یہ بات آپ پہ بھی بنتی ہے کہ جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم غذا کا خیال رکھتے ہیں, غذا صحت کا بڑا قریبی تعلق ہے, رشتہ ہے, یہ واقعی ہمیں کووڈ نے سکھایا. لیکن 3 سال الحمدللہ آج پاکستان کو مکمل ہوتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی اس موقع پہ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتی ہوں, سدرا, نمبر 1 اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت وہاں بیٹھی ہوتی, میں بھی آپ کی ہی جتنی تیار ہوتی, تو میں آپ کو فیل کراتی کہ مجھے کتنی خوشی ہے آج پاکستان کے 3 سال پورے ہونے کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ جب ہم کچھ پڑھاتے ہیں تو ہم سب سے بیسٹ ٹاپک کو خود سیکھتے ہیں. جب ہم پرسنل گروتھ کی اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, یا ہم بایو کیمسٹری کی, نیوٹریشن کی, کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, تو وہ باتیں کرتے
करते करते हम सिर्फ लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे होते, हर पॉजिटिव बात की एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है जो सबसे ज्यादा ये अल्लाह ताला की बरकत होती है, क्योंकि जिस तरह आप इल्म बांटते हैं ना और बांटने से बढ़ता है, जब आप अच्छी हक बात, पॉजिटिव बात, किसी की भलाई को फी सबीलिल्लाह, जब जैसे आज पाकिस्तान ने ये इट इज नॉट एन एग्जेजरेशन कि वाकई एक मॉर्निंग शोज के कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म से ये डिफरेंट है, इट्स वेरी इंटेलेक्चुअल, अदर्स आर इंटेलेक्चुअल टू बट देयर इज अ मोर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट टू इट, आई वुड लाइक टू से दिस ऑन एयर. सो जब आप ये चीज फी सबीलिल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला वो चीजें आपके अंदर भी लेके आता है. तो 3 सालों में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करते करते, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स, हमारे भी, मेरी अपनी भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में मुझे गौर फिक्र करने का मौका मिला कि हाँ दिस कैन बी करेक्टेड दिस वे. फिर जो हमारे जबरदस्त पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि हर एक का नजरिया डिफरेंट होता है, मैं सुनते उनसे भी सीखती गई, आपसे सीखती गई. तो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी. आप हमेशा बेशक शहर वाइज हमसे बहुत दूर हों लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमेशा अच्छी बातें कहती हैं, सिखाती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जो पॉजिटिविटी की आपने बात की ना, इट कम्स थ्रू द स्क्रीन और हम सब चार्ज अप हो जाते हैं. तो थैंक यू फॉर दैट. सलमा जी, माशाल्लाह, दिस 3 years रियली ये ट्रेमेंडस ग्रोथ के ईयर्स रहे हैं. यू हैव ऑल्सो बिकम अ हाउस होल्ड नेम्स एंड यू हैव चेंज्ड मेनी रोल्स. उसमें हम कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन शायद हमारा भी है, हमने भी आपके साथ बड़ा काम किया, तो आपकी पॉपुलैरिटी में हम हिस्सा डालते हैं. कैसे रहे ये 3 साल आपके लिए और क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इतने दिनों के बाद आपके साथ यूं इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये कहूंगी कि आज पाकिस्तान, आज न्यूज की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ये वाहिद एक प्लेटफॉर्म है. मैं ये कोई लगी चुपी बात नहीं करूंगी, ये वाहिद एक प्लेटफॉर्म और कहती रहे. ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जितने पब्लिक स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल हैं. सबसे बड़ी बात है कि आपने जो ये फर्क किया है ना कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, साइकोथेरेपिस्ट इज नॉट डॉक्टर, और उनको बात करने का मौका दिया. पूरा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया है. यहाँ आकर बैठकर बात करना बहुत अच्छा लगता है. सबसे बड़ी बात है अपने दिल की बात करते हैं, जो सोच आती है वो हम करते हैं, खुली बात करते हैं, कोई छुपाते नहीं है. ये बहुत मुश्किल से, वरना चैनल्स पे ऐसी जगह नहीं मिलती आपको. इतना पढ़ा लिखा कंटेंट लेके जाने के लिए आपने ये साबित कर दिया है सिद्रा, लोग पढ़ी लिखी सोशल इश्यूज पे बात सुनना चाहते हैं, और ये प्रोग्राम आज 3 साल पूरे कर रहा है. इस बात का सबूत है कि सिद्रा ने इसको बहुत अच्छे से रन किया है. इसमें कोई शक नहीं. इसका मार्जिन मौजूद है. डॉक्टर सोबिया, अक्सर लोग कहते थे कि भाई ये एक सेगमेंट हो सकता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का दिन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए भी मुश्किल था कि हम इसमें मुख्तलिफ एंगल्स लेके आए. आप लोगों से रहनुमाई देते रहे, आपकी इसमें बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही. लेकिन क्या आपको लगता है कि हैव वी इन एनी हम्बल वे बीन एबल टू मेन स्ट्रीम दीज इश्यूज? क्योंकि पहले तो आपको पता है ना कि अगर किसी को डिप्रेशन है, कोई थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो एक उमूमी राय ये थी कि पागल है बंदा, ये फारिग हो चुका है दिमाग से. अब हमारी सोच में तब्दीली आई है. बिल्कुल आई है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 3 years, और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड आई विश यू सक्सेस इन फ्यूचर एज वेल. थैंक यू. बिल्कुल देखिए, तब्दीली आई है, एंड ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू मीडिया, बिकॉज मीडिया इज वन ऑफ द पावरफुल जो है आपका एक मीडियम है जो कि चेंज ला सकता है सोसाइटल बिहेवियर्स में, नॉट ओनली सोसाइटल, इंडिविजुअल बिहेवियर्स में भी, एंड इंडिविजुअल्स मेक अप द सोसाइटी. सो वो जहाँ एक स्टिग्मा था, लोग बात नहीं करना चाहते थे, लोगों को एक डर था, खौफ था, और स्टिग्मेटाइज कर दिया जाएगा, पागल करार दे दिया जाएगा, तो उसमें ये आपके प्रोग्राम ने, बिकॉज आई हैव constantly like was coming here even during COVID भी हमने प्रोग्राम्स किए, तो वो जो एक आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को मैसेज पहुंचा है, तो दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, पीपल्स बिहेवियर. तो अब जो है लोग ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर हम कंपेयर करें लास्ट 3 years में, एंड पर्टिकुलर द कोविड टाइम पीरियड, द पीपल स्टार्टेड ओपनिंग अप, लोगों ने जो है वो बात करनी शुरू की. तो उसमें एक आपका ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, एंड यस अ चेंज हैज कम. राइट, एंड द कंट्रीब्यूशन हैज कम बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आप लोगों ने एक्सपर्ट इसके अंदर अपनी राय डाली. और हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम में से कई लोग जब इन मराहिल से गुजर रहे होते हैं, दे डोंट हैव द राइट रिसोर्सेज, उनकी रसाई नहीं होती कि किसी थेरेपिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से वो रुजू कर सकें. सो इन आवर हम्बल वे वी ट्राई टू मेक दिस नॉलेज मोर एक्सेसिबल टू यू. लेकिन एक ब्रेक पे जाने से पहले सहर, हमने ऐसी प्रोग्रामिंग भी देखी है शुरू में, क्योंकि हमने भी विद लर्निंग सीखा है ना, लेकिन नाम नहीं लूंगी ना शो का ना होस्ट का, लेकिन लोग कहते हैं जी करेले के पत्ते उबाल के पी लीजिए, तो अगर डिप्रेशन हो रहा है या उदासी फील हो रही है वो दूर हो जाएगी. ग़िज़ा का मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है, इस पे अगर आप एक कॉमेंट करें बिफोर वी टेक अ ब्रेक.
अगर आपके पास डिप्रेशन इडियोपैथिक है, यानी आप उसका रीजन डिस्कवर नहीं कर सकते, या सिचुएशनल है या क्लिनिकल है, तो आप उसको खाली ग़िज़ा से नहीं जोड़ सकते. हाँ, अगर आपकी डिप्रेशन क्लिनिकल है, चाहे इडियोपैथिक है, चाहे किसी खास सिचुएशन की वजह से सिचुएशनल है, आप सिम्टम्स को कंट्रोल अपनी डाइट और एक्सरसाइज से कर सकते हैं. बट डाइट कैन नॉट बी द एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन. आई कैन नॉट से दैट. बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट इज सो क्रेडिबल कमिंग फ्रॉम अ पर्सन who understands nutrition, who understands the psycho orientation of people कि किस तरह वो दुनिया को देखते हैं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. सुशी भी बन रही है, उस तरफ भी जाना है. जिस तरह के हमने कहा कि आर सेलिब्रेशन पार्टनर्स इज पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची. अगर आप कराची आए हैं तो आपकी सेलिब्रेशन पीसी के बगैर नामुकम्मल हैं, और अगर आपको जापानीज क्यूजीन पसंद है तो सकूरा के बगैर नामुकम्मल है. एक दफा फिर आपको बताती चलूं कि अब सकूरा को कराची में 21 साल हो गए हैं. तो इफ योर फेवरेट इज देयर teppanyaki or their sushi, so today's show is for you. एक छोटा सा ब्रेक लेते, we'll be right back. जी जनाब, ब्रेक के बाद हमने कहा था कई मिथ्स को हम बस्ट करते रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, लेकिन साथ ही साथ जापानीज क्यूजीन. जिन लोगों को, खासतौर पे हमारी अम्मियों को जहां शौक नहीं है ना सुशी खाने का, उनको लगता है सारी जापानीज क्यूजीन कच्ची पक्की होती है. लेकिन शेफ जून हमारे साथ मौजूद है और ये अच्छी तरह पाकिस्तानी स्टाइल जो हमें पसंद है उतनी ही पकी हुई डिश है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज. शेफ जून, व्हाट इज दिस एंड प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट दिस डिश. Okay, actually this is one of the fast moving in Sakura. We call it the beef shogayaki. Okay. But in Japanese, instead of beef, they make it gyu. So this is thinly sliced of beef undercut and saute with the sweet sauce, with the soya sauce, and flavored with the ginger. So Is it very spicy and do you eat it with rice? No, this is little bit sweetened and we are eating with the rice. With rice, with garlic course. rice? Yes. Oh, very nice. तो अगर आप मेरी तरह कंफ्यूज रहते हैं, वैसे तो मुझे तो सुशी बहुत पसंद है, जिनको सुशी नहीं पसंद तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं. दिस इज मेड फ्रेशली राइट देयर, थिनली स्लाइस्ड जो बीफ स्लाइसेस हैं, उर्दू में कहना चाहें तो जी पसंदों से बनता है ये, और बड़ा मजे का होता है. इसमें हल्का हल्का आपको मिठास भी मिलेगी और जिंजर भी मिलेगा. सो शेफ जून, while you carry on with the next dish, I will move towards my guests as well. मुंह में पानी आ रहा है ना सुबह सुबह? सबसे ज्यादा पसंदों वाली बात अच्छी है ना, पसंदे ना हो तो पसंद ही नहीं आता, कुछ क्या करें. अच्छा मुझे ये बताएं सलमा, आपने हमारे किचन की भी रौनक बढ़ाई है, वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? मैं वैसे एक बात बताऊं, ये पहला किचन है जो मैंने किसी चैनल पे या मीडिया में किया है, अपनी डिग्री को यूज करते हुए, या मुझे ये चांस मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल वहां पर वो रमजान का किचन था और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर दिल की बातें हो रही थी, वहाँ जरा खामोशी से काम हो रहा होता था, यहाँ काम ज्यादा हो रहा था. और ये नॉर्मल हमने कोई चैलेंज नहीं दिया, हमने इनको रमजान में कड़कती धूप और गर्मी में चूल्हे और तेल के सामने फूंक दिया था. लेकिन मुझे एक बात बताया सोबिया, आई सी कुकिंग टू बी वेरी थेरेप्यूटिक, और बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते, और बहुत सारी खातून खाना तो मुझसे डिसएग्री करेंगी कि सिद्रा जब रोज पकाना पड़ता है ना, आपकी तरह शौकिया कुकिंग ना हो तो ये थेरेप्यूटिक नहीं हो सकती. आपका इसमें क्या ख्याल है? देखिए, कुकिंग हैज अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट. आपकी कोई भी ऐसी चीजें जो आपको पसंद है, कोई भी लेजर एक्टिविटी आप कर लें, वो चाहे आप कढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, आप कपड़े सी रहे हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, वो कुकिंग कर रहे हैं आप, तो दैट हैज अ वेरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट. Okay. तो वो जब आप पकाते हैं, हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो वाली बात है कि रूटीन में अगर आपकी एक ड्यूटी बन जाती है तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग कि वो मोनोटोनस हो जाता है. तो एनी टास्क विच इज मोनोटोनस, तो वो थोड़े अरसे के बाद आपके लिए बोरिंग, या वो आपके लिए थोड़ा सा उतना ज्यादा जो है वो प्लेजेंट नहीं रहती है. लेकिन अदर देन अगर जैसे खवातीन जिनको मैं कहती हूँ कि लाइक जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती है, या जिस तरह से है कि अक्सर डिप्रेस्ड या बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस का शिकार रहती हैं, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट. तो अगर वो कुकिंग है तो दे कैन गो इन किचन वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, तो अपनी पसंद का कोई खाना बना सकते हैं. अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं कल परसों एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी फरहाद, और किसी ने कहा कि डिप्रेशन दूर करने के या स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के 100 तरीके बताए गए. लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री थी तो देयर वाज अ पर्सनल रिकाउंट ऑफ अ पर्सन. उसने कहा यार मुझे डिप्रेशन है, आप मुझे मशवरा दे रहे हैं कि सुबह उठें, योगा करें, हॉबीज करें, मेरा उठ के मुंह धोने को भी दिल नहीं चाह रहा, मेरा बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाह रहा. एंड वी ऑल सॉर्ट ऑफ हैड आवर ओन वर्जन ऑफ द सेम स्टोरी ड्यूरिंग कोविड, कि हमें रियलाइज किया कि हम शायद मुंह धोते तैयार होते दूसरों के लिए थे. जब घर में रहना पड़ा, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो पजामा पार्टी जिंदाबाद, हमने तो कपड़े बदलने की जहमत ना की. तो हाउ डू यू कोरिलेट दीज रियलिटीज?
देखिए ये बहुत बड़ा मौजू है, यू नो, आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता अगर लेकर के चलें उसको। सबसे पहली बात तो ये डिप्रेशन एक तो क्लियर कर दें, बाहर नहीं होता, अंदर ही है। तो ये भी लोग कहते हैं आजकल बड़ा स्ट्रेस है, ये आजकल क्या यार, इट्स अ डे। अभी अगर बारिश हो रही है इस वक्त हमें नहीं फर्क पड़ रहा तो हम अच्छे हैं, अगर हम बाहर होते इस वक्त बारिश हो रही होती तो हम स्ट्रेस में होते। वो तो एक तो ये समझने की देखिए अंदर है। दूसरी चीज, इसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जो डिप्रेशन आता है इसलिए वी डोंट एक्नॉलेज दैट इट एग्जिस्ट एंड वी डोंट ट्राई मेकिंग फ्रेंड्स विद इट। है ना डिप्रेशन, तो मैंने मान लो अच्छा क्यों डिप्रेशन है, क्या चाहिए ना, इट्स लिटिल वियर्ड, लेकिन देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड रिलीजिंग। तो उसमें होता है कि आप पहले अपने आप से जाके पूछते हैं, आई डू इट्स कॉल्ड अ क्लेंजिंग प्रोसेस एंड आई डू द क्लेंजिंग प्रोसेस एवरी डे इन द मॉर्निंग। वो सुबह को जो है ना आई गो थ्रू लाइक अ स्कैन ऑफ द एंटायर बॉडी, कोई मसला है तो बताओ। आप देखें आपकी एंड वेयर आर यू होल्डिंग टेंशन। आप जितनी गाइडेड मेडिटेशन करेंगे उसमें आपसे पूछता है कि अगर आप तकलीफ में हैं, स्कैन योर बॉडी, जिस तरह बिल्कुल आप कह रहे हो। तो उसको दोस्ती कर, उसको क्या चाहिए, आई लिटरली टॉक, बेटा क्या चाहिए, तकलीफ है, परेशानी है, let it go. I know you exist. Now it's time for you to go. Because I don't need you today. I have better things to do. So I think you resist करते हैं ना जो परेशानी को, कोशिश करते हैं ना आए अपनी जिंदगी में। डिप्रेशन और स्ट्रेस इस वजह से शुरू होती है। You are absolutely right. There's so many calls we used to get. और सो भी आपके पास भी एक क्वेरी आती थी कि मैं बहुत हसास हूँ, मैं दूसरों की बात को दिल पे ले लेता हूँ, मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बताएं कि मुझे फर्क ही ना पड़े। ये जो हम बेहिस होना चाहते हैं, that's not going to help us. So बेहिसी is not the like solution for your जो भी आपके इश्यूज हैं, या वो चाहे अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट। इवन इफ यू आर डिप्रेस, दैट्स परफेक्टली ओके। अगर आपको एंजाइटी है, दैट्स परफेक्टली ओके। या अगर आप किसी और साइकोलॉजिकल इशू से गुजर रहे हैं, सो एक्नॉलेजिंग, जब आप एक्नॉलेज करते हैं ना एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, वेदर इट्स इलनेस, इवन लोग हैं आपकी जिंदगी में, तो वो आपको बॉदर करना छोड़ देते हैं, वो फिर आपकी लाइफ पे इफेक्ट करना छोड़ देते हैं। अच्छा, हमने कोविड में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशंस देखी सलमा। हमने एक बात ये की, अ लॉट ऑफ मेन एंड फैमिलीज वेंट थ्रू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो उसकी वजह से रिश्ते भी खराब होने लगे। लोगों ने कहा कि जी 2020 और 21 में एक अजीब फिनोमेना था, पीपल हैड कोविड बेबीज, पीपल हैड कोविड मैरिजेस, पीपल हैड कोविड डिवोर्सेस। और एक मैं कपल को बजाते खुद जानती हूँ जिन्होंने कोविड में शादी की और कोविड में डिवोर्स ले ली। तो यानी क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द? असल में हम वो जो नॉर्मली लाइफ में देख रहे होते हैं ना कि सारे बिजी होते हैं। अगर मैं इसे बड़ी सादी जुबान में कहूँ तो मियाँ सुबह उठ के 9 बजे ना काम पे चले जाते हैं और 5 बजे आते हैं। वो जो सारा दिन बैठेंगे और घर से काम करेंगे, हर थोड़ी देर में चाय का कप भी होना चाहिए, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, खाने के लिए भी कुछ आ जाना चाहिए। तब कॉन्स्टेंटली जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं तो आप थक रहे हैं और चिड़चिड़े हो रहे हैं। एक जो मूड स्विंग्स आपके जो होते हैं ना, वो कोई नहीं देख रहा क्योंकि सब घर में ही बैठे हुए हैं और आपकी उस अंदाज में केयर नहीं हो रही, आप बाहर कहीं नहीं जा रहे, कोई आउटिंग नहीं हो रही, लोग आपके घर में नहीं आ रहे। तो वो जो हाउस रेस्ट हो गए हैं ना, उससे बहुत ज्यादा डिप्रेशन था। और दूसरा जो डाउन साइजिंग हुई, जैसे जॉब्स चली गई, जिनका काम है डेली वेजेस का, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इन सारी चीजों का स्ट्रेस जो था वो एक दूसरे के रिश्ते पे आया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दुनिया भर में हो रही है और आपने पहले हाफ प्रोग्राम में देखा, मैंने ये फराह से भी डिस्कस किया बिकॉज शी नोज प्रोफेशनल्स वेरी क्लोजली टू। फराह, हमने यूरोप और अमेरिका में नोटिस किया, दे कॉलिंग इट द बिग रेजिग्नेशन। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें अमेजॉन शामिल है, गूगल शामिल है, उसमें टॉप पोजीशंस पे जो लोग थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कि भाई हम ठीक है घर से काम कर रहे हैं लेकिन आपने तो हमारा खून ही निचोड़ लिया है। सो नाउ यू नो इट्स वेरी स्ट्रेंज के वहां पे जॉब ज्यादा हैं, लोग कम हैं, दे नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल एंड द एम्प्लॉयज जिन्होंने खुद रिजाइन किया है वो बेहतर डील्स निगोशिएट कर रहे हैं इन कंपनीज के साथ। व्हाट डज इट मीन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? I think it's very different for everybody and it also varies from culture to culture. यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं बताऊंगा, उनके यहाँ जब ये लॉकडाउन शुरू हुए थे, शुरू में उनके यहाँ ये था 9:30 बजे जूम ऑन करना है। Now whether you work or you do whatever, whether you're part of the meeting or no, your Zoom is supposed to be on 9:30 से लेके 6:30 बजे तक। आप खुद सोचें, तो बिला वजह का स्ट्रेस आप थोप रहे हैं। अब ना सारी कंपनियां तो ये नहीं कर रही। तो आई थिंक एक एज अ नेचुरल अगर कहते हैं कि हर किसी के साथ यही है। आई थिंक कोविड ने एक और चीज सिखा दी है कि इट्स कस्टमाइज, सबके अलग अलग है। तो वेस्ट पे भी अगर हो रहा होगा, हर कंपनी के साथ नहीं हो रहा, हर बंदे के साथ नहीं हो रहा, हर घर के अंदर ये नहीं हो रहा। एक चीज जो उन्होंने वेस्ट में फौरन अपनाई और हमारे मल्टीनेशनल्स ने भी करने की कोशिश की कि रोज जी, अब सबको पता था कि आप घर में हैं, आप अकेले हैं, तो यकीनन आपको स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज सेंडिंग अ सर्वे एवरी डे, हाउ आर यू फीलिंग, कैन वी हेल्प यू। मुझे तो स्ट्रेस, वो सर्वे को देख के ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता था। बस हो जाती है ना बंदे की, बस करो मुझे, क्योंकि सब मैं ठीक हूँ। और ये कहीं वो जो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं ना, उससे भी काफी ज्यादा वो चिढ़ जाते हैं। भाई नहीं इस्तेमाल करो ना, ऐसे अल्फाज ही क्यों इस्तेमाल करने जो फीड करते हैं। इंटरेस्टिंगली, डू यू नो व्हाट द वर्ड फीलिंग मीन्स? फीलिंग इज समथिंग व्हिच इज इरैशनल अकॉर्डिंग टू गूगल। तो मुझे जब कोई कहता है ना आई एम फीलिंग एंग्जाइटी, इट्स इरैशनल, नाउ लेट्स सी व्हाई आर यू फीलिंग एंग्जाइटी, व्हाट इज इट?
Tell me something more tangible. What is feeling? ये तो फिर भी आसान चीज है ना. मैं तो रोज उनको कहती हूँ आई एम फीलिंग फैट टुडे. अब इसका जवाब दो ना. मेरी फीलिंग है कि मैं मोटी हो गई. ठीक है, आप सही सोच रही हैं. बिल्कुल, फीलिंग इज परफेक्ट. क्या कहना चाह रहे हैं आप मुझसे? आपकी फीलिंग सही है. अगर आपकी फीलिंग रखनी है तो रखें. फीलिंग है, हवा है. एंड सुशी से पहले ऐसी बातें मैं सुनना ही नहीं चाहती. एक चीज बताऊं, जैसे मैंने आपके साथ रहते हुए ड्रामा स्टार्ट किए तो मैं बहुत ज्यादा स्वेट कर रही होती हूँ. गर्मियों में तो बुरा हाल होता है, मेकअप बह रहा होता है. तो एक डायरेक्टर है, उन्होंने ये शोर मचा दिया, खबरदार जो किसी ने ये कहा आज बहुत गर्मी है. और कहता है मौसम कितना अच्छा है, आज मौसम कितना अच्छा है. एंड आई रियलाइज आई विल टेक इट अ नॉच हायर. कोई कहे ना बहुत गर्मी, अरे नहीं कितना अच्छा मौसम, मेरा फर का कोट तो निकालो, वो पहन के तैयार हो. कहते इससे आप थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा यार प्लीज. आप ये फेथ हीलिंग को ना नेक्स्ट लेवल पे ले गई हैं सलमा के. आप इमेजिन करें सब अच्छा है तो सब अच्छा है, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम बार बार ये कहते रहे हैं कि योर रियलिटी इज ट्रूली शेप्ड बाय योर पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज यू नो दिस इज सच अ ग्रेट एम्पावरिंग थॉट. लोग कहते हैं कि शायद आप ही को भी ब्लेम डाला जा रहा है कि हमारे इर्द गिर्द शायद सब लोग अच्छे हैं, मैं ही खराब हूं. नहीं, व्हेन यू आर द प्रॉब्लम इट इज ट्रूली एम्पावरिंग व्हेन देन यू आर द सोल्यूशन एज वेल. इस पर जरा गौर करें. हम छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. वापस आ जाते हैं जी किचन में, जहां पे शेफ जून हमारे साथ मौजूद हैं. वंस अगेन आपको बताती चलूं कि सकूरा इज अ फ्लैगशिप जापानीज क्यूजीन रेस्टोरेंट हियर इन कराची, जो कि पीसी कराची में है और इसको 21 साल मुकम्मल हो गए. शेफ जून, यू हैव बीन हियर फॉर 21 years as well? Yes, actually around 19. 19. So you came a little Yeah, because after. I gave resign first before MPC and I shipped to Kuwait. Then after that I come back again. And then you never left, and we are so Yeah. happy and proud of That's that. really Tell good. me something you're making. What are you up to now? This is a sushi. Okay, actually we're going to make a spicy salmon with sashimi and nigiri. So Wow. this is like So a assorted lot of platters. people want to know the difference between sushi and sashimi. Can you Yeah, let them know the about that? sashimi is just only plain slice of seafoods, and the nigiri is a thin slice of seafoods, but with the mold rice. With the Sushi mold of rice. Sushi यानी जिन लोगों को डर लगता है sashimi प्योर, वो आपको सी फूड मिलेगा जो कि कच्चा होता है. और अगर आप चाहते हैं उसको थोड़ा सा पैलेटेबल बनाना और उसको राइस के साथ खाना, बट व्हाट इज दिस ग्रीन थिंग? अ लॉट ऑफ टाइम्स माय मदर गेट्स वेरी अपसेट विद दिस ग्रीन थिंग. शी सेज दिस इज perhaps some kind of fungus or mold. No, it's not a fungus. Actually, it was a seagrass. This one actually is like when you from the land you are planting rice, and this one also they are also plant this one in the sea. So you send divers to get them? No, Somebody has worked actually really this hard? one is just only floating with a group, and then they are tied with border, and this was like only floating. So Super. So there this is like is a month how this is long it actually takes. floating sea grass, जिसको आप on the surface of the sea एक तरह से harvest करते. So I'll let you continue with it. बीच बीच में हम we'll keep showing our viewers what you're up to. So please go ahead while I come No back problem. to them. आप फिक्र ना करें सलमा, आप खा के जाएंगी. हम कुछ ना कुछ बना लेंगे, नहीं तो पसंदे तो बन ही गए. चावल के साथ. चावल के साथ तैयार. देखो जरा. अच्छा, a lot of people, ये जब हम टेस्ट की बात करते हैं ना, आप देखें, मुझे जो सबसे अच्छी चीज जापानीज क्यूजीन की लगती है, इफ यू वुड एग्री विद दैट, कि देयर इज दैट ब्लेंड ऑफ स्लाइट स्वीटनेस इन योर सेवरी, इन योर मेन कोर्स. और जिंदगी भी ऐसी है सोबिया कि उसके अंदर आपको कभी मिठास भी मिलती है. हम जरा तीखा अचार ज्यादा खाते हैं तो हम मिठास के आदी भी नहीं होते. इसको कैसे आप हाउ डज दिस एनालॉजी सिट फॉर यू? बेसिकली कुछ लोगों के होती हैं, कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि बचपन से किस चीज की आदत आपको डाली गई है. यानी इफ यू कंपेयर आवरसेल्व्स, हम एशियंस हैं, अगर हम जैसे व्हेन आई वेंट टू वेस्ट, तो उनके लिए मिर्च खाना पॉसिबल भी नहीं है. तो अगर आप अपने एक छोटे बच्चे को देखें तो वो मिर्च नहीं खा पाता है ना. जब उसे बहुत छोटा से, अगर 1-1.5 साल है, कुछ मंथ्स का बच्चा है, ये अगर आप कर लीजिए 1-1.5 साल का बच्चा भी है, अगर आप उसे स्पाइसी फूड देते हैं तो वो रेजिस्ट करता है, वो कहता है मुझे नहीं खाना. बट आफ्टर समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो उसको खाना शुरू कर देता है. सो माय नीस इज 7 ना, अब उसे स्पाइसी चीजें चाहिए, स्पाइसी नूडल चाहिए, स्पाइसी बिरयानी चाहिए. which is unfortunately also the case in a lot of abusive relationships. True. आपके लिए जो अब्यूज होता है वो इतना नॉर्मल हो जाता है कि आप उसके
کے بیونڈ دیکھتے نہیں. ویری ویل پٹ. سلما, پازیٹیوٹی جو ہم سب چاہتے ہیں, ہماری ایم بھی یہی رہی ہے ان سیگمنٹس کے تھرو. مجھے یہ بتائیں کہ پازیٹیو تھنکنگ میں لوگ اسیوم کرتے ہیں کہ ہر وقت اچھا سوچیں, سو دے ایکچولی فیل گلٹی, دے فیل بیڈ جب ان کو غصہ آتا ہے یا وہ ڈپریس ہوتے ہیں. ان کا خیال ہے ان کو ہر وقت ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے. کیا مشورہ ہوگا؟ جو وہ کہتے ہیں نا, آپ نصیحت کرتے کرتے تو آپ ڈر جاتے ہیں, بعض اوقات آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں جس میں آپ تھکے بھی ہوئے ہیں, کسی کی بات بہت بری لگ جاتی, بعض اوقات ہمیں بہت چیزیں ہرٹ کر جاتی ہیں. بہت بڑی بڑی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, اور وہ کہتے ہیں نا گلاس جو ہے وہ پورا فل ہو چکا ہے, بس اب اسپل کرنے والا ہے, تو وہ ایک چھوٹی سی بات جب آپ کو ہرٹ کرتی ہے تو آپ بہت بری طرح سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں. پھر آپ معافیاں مانگتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ نے سب کو یہی کہا ہوا ہے کہ پازیٹیو رہنا چاہیے, اور آج تک آپ پازیٹیو ہی تھے. اچھا, یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں. ابھی چند دن پہلے ماہنور نے مجھے کہا, کہتی ہے 20 ایئرز میں نے اپنی ماما کو دیکھا, کوئی بات نہیں بیٹا, خراب ہو گیا, کوئی بات نہیں, اگر ایگزام میں اچھا رزلٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں, اگر آپ کو ساکس نہیں مل رہے میں دیتی ہوں. اور اب 20 سال کے بعد اچانک آپ کو کچھ ہو گیا, ہر وقت میں ہی دیتی رہوں, کچھ خود بھی کر لیا کرو. کہتے یہ کیا ہمیں پرکٹ ہو گئی, وہ ہر چیز ماں ہی کرے. نہیں, کہتے کہ آپ کو پتا ہے آپ نے ہمیں کتنا اسٹریس دیا, ایک دم ہماری ماں بدل گئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے, اور اس کے بعد میں بہت گلٹی ہوئی, بہت زیادہ. تو یہ بڑی ایک سادی سی مثال میں نے دی ہے. نارملی یہی ہوتا ہے, ہم بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو پازیٹیو رکھنے کے لیے بہت بڑی بڑی باتوں کو چھپا جاتے ہیں. Being positive does not mean that you will not have negative or angry emotions. They are actually your friends. Farhad, your parting advice to people, and again stressing on mental health. Stressing on mental health, I think accept whatever it is, don't resist those things. یہ جو غصہ بھی جو چڑھنا بھی اس لیے ایکسپیکٹیشن ایک لمٹ ہو جاتی ہے کہ بندے کی بس ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک مانوا جو آپ نے کیس بتایا بس ہو گئی, اب اتنے ٹائم تک صحیح تھے. لیکن I think just accept whatever it is, acknowledge it, understand that feelings can be let go, and I think سب سے ضروری اس کی شروعات بھائی tangible اگر کہا جائے, اپنے الفاظ ضرور چیک کر لیں. Your linguistic patterns determines your moods, your labels, ہر چیز کا لیبل ہے. آپ نے اگر لیبل نیگیٹو لگایا ہے, آپ جتنی اچھی باتیں کر لیں. I love that advice. تبھی آپ نے شروع میں ہی کہا کہ feelings are irrational, لیکن ہم اپنی feelings کے ساتھ اتنا ریلیٹ کر جاتے ہیں کہ ان کو ریئل بنا دیتے ہیں. Thank you so much فرحاد, سلما and Sobia for being here. اور اب چلتے چلتے, and this is all ready, the sushi is ready. It looks yummy. Sashimi is also there. Presentation idea آپ کے سامنے ہے. Expert hands کے ساتھ شیف جون نے یہاں پہ what sauce is this? This spicy mayo. اسپائسی میو, جس کو ہماری طرح ابھی ہم اسپائس کی بات کر رہے تھے نا صوبیہ, دیکھ لیں پاکستانیوں کو ہر چیز میں اسپائس چاہیے. بڑا اچھا نام آیا, جاپانی اچار. جاپانی اچار, جاپانی چٹنی ہے یہ. زندگی میں بھی اسپائس چاہیے ہوتا ہے. یہ سبورا والے کہیں گے ہم نہیں آ رہے آپ کے شو, آپ نے ہمارے جو نا اتنا دیسی تڑکا لگا دیا. بٹ گائز, آئی پرسنلی لو اٹ, ناٹ جسٹ فار دا کیوزین, لیکن دا ونڈرفل ایمبیانس. اگر آپ کو واقعی شہر کراچی کا حسن دیکھنا ہے, گو ٹو سکورا. آئی ہیو اے فیوریٹ ٹیبل over there. I'm sure you do as well. Or this is definitely going to be a moment to celebrate. Thank you so much, chef, for being here. آخری جلدی سے ہم ان کو presentation idea بھی دکھا دیں. So this is Tobiko, caviar. the caviar. اگر آپ کو فشی فلیور پسند ہے, ویسے تو زندگی میں بہت کچھ فشی چل رہا ہے, سو مے بی یہ کم ہی ڈالیں تو بہتر ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ شیف جون فار بینگ ہیئر. لاسٹ اس کی تصویریں اگر آپ نے دیکھنی ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیے گا, بٹ دس از آل دا ٹائم وی ہیو. اپنا بہت خیال رکھیں, کنٹینیو بینگ اے پارٹ آف آور سیلیبریشن ویک, کیونکہ کل اور پرسوں وی ہیو سم مور سرپرائزز فار یو. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.